Assalamu alaikum, my dear students. I am your chemistry tutor Yasir sir. I welcome you all to the video lecture number 3rd. This is for the class 11th. We are discussing the unit equilibrium, and before I will start today's lecture, I just want to recapitulate the things very quickly. We are discussing the chapter equilibrium, and we define the equilibrium is that state of a process. The process can be either physical or a chemical, where the system is under the balancing condition. I mean to say that there are various parameters, there are various measurable quantities of the system, such as temperature, such as concentration, such as pressure, etc., which practically remains constant in that very process, and we call that state as an equilibrium state. And one more thing I told you is that when the state of equilibrium is attained in a process, then there are two opposing forces which balance each other, and these two opposing forces proceed in the opposite directions at an equal rate. And then the next we had discussed it that the equilibrium is basically, we discuss it in two ways. One is the physical equilibrium, and second is the chemical equilibrium. And one more important thing that I told you, that equilibrium concept is essentially used in the reversible processes. It cannot be utilized in irreversible processes. So my dear students, we were discussing the concept of equilibrium in physical processes, and we had discussed in the last video lecture number 2nd the physical equilibrium equilibria. That means when the equilibrium is attained in a physical process, we call such an equilibrium as physical equilibria. And in the last video lecture, I have already given you one simple example to understand that, in which I told you the equilibrium established in the phase transformation processes, where solid and liquid state of a substance had an equilibrium in it, and we call that as a physical equilibrium. My dear students, today we are going to extend our topic. We are going to continue our topic, means we are going to discuss the physical equilibria, but today our topic is concerned about the equilibria which is in between the liquid and its vapor. That means liquid vapor equilibria, my dear students, हमने आज पढ़ना है. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए my dear students, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप आपके सामने रखा है. मैं इस चीज को आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा, तो प्लीज आप ध्यान रखें बोर्ड की तरफ. My dear students, मैं यहाँ पे कोई भी लिक्विड सबस्टेंस लूंगा. लिक्विड सबस्टेंस डिफरेंट होते हैं, अल्कोहल होता है, वाटर होता है, तो मैं कोई भी लिक्विड लूंगा और उस लिक्विड के उसके वेपर, उस लिक्विड के वेपर के दरमियान हम इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. तो इस चीज को पहले समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव डन, मैंने एक गिलास शीट लिया है. इस गिलास शीट के ऊपर मैंने एक गिलास का बॉक्स रखा है, और इस गिलास बॉक्स को, इस होल सेटअप को मैंने बाहर एक यू शेप ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसमें मरकरी मैंने फिल किया है. मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता दूं दैट मरकरी जो है ये हमें इस्तेमाल होता है प्रेशर मेजर करने के लिए. तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रेशर की बात करनी है, बिकॉज वेपर बनता है, तो वेपर का माय डियर स्टूडेंट्स प्रेशर होता है. तो इसीलिए हमने यू शेप ट्यूब जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से जो हम प्रेशर बाद में मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो उसमें हमने माय डियर स्टूडेंट्स जैसे मरकरी रखा है. और यहाँ पे मैंने एक पेट्रो डिश रखा है माय डियर स्टूडेंट्स. तो इस पेट्रो डिश में क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा, इस पेट्रो डिश में मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट वाटर, और आप इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी डाल सकते हो, P2O5 माय डियर स्टूडेंट्स. ये दोनों जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यानी कि इस गिलास बॉक्स में कोई मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, तो इसलिए हमने कुछ घंटों के लिए इस पेट्रो डिश में इन दोनों कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड डाल के रखा. यानी कि अगर इस कंटेनर में कोई मॉइस्चर होगा भी, तो वो सारा एब्सॉर्ब ये केमिकल कंपाउंड जो है आपस में करेंगे, और यहां पे मतलब हम कहेंगे कि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा. तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब हम कुछ घंटों के लिए इसको यहां पे रखेंगे, तो उसके बाद इस बॉक्स को जल्दी से टिल्ट करके हम इस चीज को बाहर निकालेंगे. मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे कहने जा रहा हूं वो ये, मैंने कहा दैट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. मतलब क्या है इसका मतलब है दे विल एब्जॉर्ब
they will absorb all the moisture, they will absorb all the moisture content. My dear students, what I am writing, please try to understand. They will absorb all the moisture content from the glass box. यानी कि अगर गिलास बॉक्स में कोई मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो उस मॉइस्चर कंटेंट को हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मदद से बाहर निकालेंगे। अभी मैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आया, फिलहाल मैं आपको इनिशियली ये चीजें सिखा रहा हूं। उसके बाद जब हमने मतलब प्रोसेस किया, यानी कि वी हैव kept in mind that there is no moisture content present in this glass box. Now after that what we will do, जो ही हमने ये पेटर डिश माय डियर स्टूडेंट्स बाहर निकाला, अब हम धीरे धीरे इसी सेटअप में, यानी कि मैंने दूसरी डायग्राम उसके लिए बनाई, एक मैंने दूसरा पेटर डिश लाया जिस पेटर डिश में मेरा लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड कोई भी हो सकता है, और लेट सपोज मैंने लिक्विड यहाँ पे वाटर लिया, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है लिक्विड और उसके वेपर के दरमियान कैसे माय डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आता है। तो इसलिए मैंने लिक्विड जो यहाँ पे चूज किया वो मैंने यहाँ पे वाटर चूज किया। आप वाटर की जगह कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो ही मैंने ये पेटर डिश जिसमें वाटर प्रेजेंट है, जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है, जो ही मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा, उससे पहले मैंने इंश्योर किया था कि इस बॉक्स के अंदर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो किसी और लिक्विड का। तो इसलिए मैंने उसमें कुछ घंटों तक कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रखा, सो दैट मॉइस्चर विल बी एब्सॉर्ब्ड एंड नाउ द सिस्टम इज हियर एट दिस पॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है। देखिए, अब जो इस कंटेनर में, इस पेट्री डिश में मैंने वाटर रखा, और मान लो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर भी आप रख सकते हो या कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रख सकते हो। मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाटएवर। और टेम्परेचर आपको यहाँ पे क्या करना है काम, अब टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स आपको कांस्टेंट रखना है। यू हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, and whatever it is the temperature, it can be 100 degree centigrade, it can be 50 degree centigrade, it can be 40 degree centigrade, whatever is the temperature, you have to keep that constant. You don't want to change the temperature now. अब इनिशियली माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, चलो मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, यानी कि जो ही आपने लिक्विड रखा, अब लिक्विड जो है ये एनवायरमेंट से हीट जो एब्सॉर्ब करने लगेगा। जो ही हीट एब्सॉर्ब करने लगेगा, माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा काम, इस लिक्विड में, इस कंटेनर में जो लिक्विड है, अब इसकी टेंडेंसी होगी वेपर बनाने की। The tendency of a liquid to form vapors means इसका जो gaseous form होगा at a particular temperature, that process is called as vaporization. That process is called vaporization. एक और important बात मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं, जब आपने ये सेटअप देखा, पहले आप देख रहे हो कि मरकरी लेवल जो है, देखिए मरकरी की जो लेवल है दोनों लिम्स में, देखो वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, जितना यहां से उतना यहां से। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर में कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है जो इस पे जो है अपना दबाव डालेगा, अपना प्रेशर डालेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो ऊपर मैंने एज ए ट्यूब ओपन रखा, इसका मतलब है ट्यूब इज कनेक्टेड विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो मैंने यहाँ डॉटेड फॉर्म में दिखाया, एटमॉस्फेयर की गैसेस का अपना वजन होता है, और उस वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, और मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, मान लो वो 1 एटमॉस्फेयर है, मान लो, और 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू जो होता है 1.0, चलो मैं रफली लेता हूं 0.3 बार, 0.3 बार के बराबर होता है। तो मान लो बाहर जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो 1 एटमॉस्फेयर है, उसका वैल्यू उतना होता है, और वो बिल्कुल यहां से भी मरकरी कॉलम पे एक्सर्ट करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, अंडर दिस कंडीशन यहां पे आप देखोगे मरकरी जो है वो दोनों लेवल्स में अंडर बैलेंस्ड कंडीशन है। मरकरी इज अंडर बैलेंस्ड कंडीशन इन बोथ द लेवल्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक सेकंड मुझे कॉल आ गया तो मैं फोन साइलेंट मोड पे रखता हूं। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, मरकरी की जो लेवल है दोनों लिम्स में, वो इस स्टेट पे बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन में है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मौजूद है, इसलिए मैंने यहां पे यू शेप ट्यूब को एक लिम जो है वो ओपन करके रखा है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, लेकिन लिम्स में जो है मरकरी की लेवल वो बराबर है।
अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहां से आपने पेंट्रेटिस डाला और आपने मॉइस्चर भी पहले ही बाहर निकाला था और आपने इसमें वाटर रखा। अब क्या देख रहे हो, मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और मान लो ये कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, अब आपको पता है इस टेम्परेचर पे इस कंटेनर में जो वाटर है इसकी टेंडेंसी होगी अब वेपर बनाने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उतना ही है, वो बाहर से है और बाहर से वो फील भी होगा बिकॉज यहाँ पे जो लिम्ब है वो ओपन है। अब जो ही वेपर्स बनने स्टार्ट लगेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स बनने स्टार्ट लगेंगे, तो यहां से धीरे धीरे आप देखोगे कि वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। माय डियर स्टूडेंट्स जब वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी तो इस प्रोसेस को पहले हम कहेंगे द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड form its vapors, the process by which the liquid has a tendency to form its vapors at a particular constant temperature and at an atmospheric pressure, that is called as vaporization। my dear students, उस प्रोसेस को हम vaporization कहते हैं। यानी कि vaporization की वजह से क्या होगा, अब मैं इस वाले सेटअप को जो है इरेज करूंगा बिकॉज मुझे यहां से चाहिए। उस प्रोसेस को आप माय डियर स्टूडेंट्स वेपोराइजेशन कहते हो, यानी कि वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड जो है अपना वेपर बनाता है। जब लिक्विड अपना वेपर बनाएगा, ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री रखा है आपने, एनवायरमेंट से वो हीट लेता है तो वो वेपर बनाएगा। लेकिन आप याद रखिए एक बात, धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, खाली यहां पे ये प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि खाली वाटर की सरफेस पे लिक्विड बाहर निकल के वो अपनी वेपर्स बनाएगा, खाली इतना ही नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली वेपोराइजेशन की रेट जो होगी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखूंगा, ये वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन। तो इनिशियली वेपर, आप अगर वाटर लिया आपने तो आप इस वेपोराइजेशन को इवापोरेशन भी कह सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से धीरे धीरे वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगी। मगर ऐसे भी चांसेस है, बिकॉज वेपर जो है ये रेस्ट में नहीं होंगे, ये मोशन में होंगे, तो देयर आर चांसेस दैट दीज वेपर्स कैन मूव हैफर्जर्डली एंड सम वेपर्स हैव अ टेंडेंसी दैट दे कैन स्ट्राइक द सरफेस बैक। जब वो वापस स्ट्राइक करेंगे सरफेस को बैक, तो सरफेस क्या करेगा उन वेपर्स को, वो उनको एब्सॉर्ब करके, यानी कि उस प्रोसेस में वो वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। एंड दैट प्रोसेस बाय विच द वेपर्स व्हेन strike back the liquid surface, they get converted into the vapor, and that process is, my dear students, called as condensation। you already know it। लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली वेपराइजेशन, वेपर बनेगा ज्यादा, यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस ज्यादा होगी, लेकिन इनिशियली कंडेंसेशन प्रोसेस कम होगी। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वेपर्स की कंसंट्रेशन कम होगी। अब धीरे धीरे क्या लगेगा, जब टाइम के साथ आप देखोगे टाइम बढ़ता जाएगा आगे, बढ़ता जाएगा आगे, तो वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन जो ही वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस होने लगेगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन प्रोसेस भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बिकॉज अब वेपर्स की कंसंट्रेशन अपर वाली सरफेस में ज्यादा होगा। द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स इन द अपर पार्ट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे दो प्रोसेसेस हो रही है, एक क्या हो रही है, एक हो रही है रेट ऑफ इवापोरेशन, या आप उसको रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हो, मैं यहां पे लिखूंगा। एक तो हो रही है यहां पे वेपोराइजेशन, देखो जब लिक्विड से वेपर बनेगा उसको वेपोराइजेशन कहेंगे, और किस स्पीड से होगा डियर स्टूडेंट्स, को कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहां पे वेपर्स वापस सरफेस पे भी जब स्ट्राइक करेंगे तो वहां कंडेंसेशन होगी, लेट अस सपोज मैं कहूंगा उसको रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब धीरे धीरे पहले क्या होगा सर, पहले रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, और उसके बाद अगर रेट ऑफ वेपोराइजेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप रखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन माय डियर स्टूडेंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आप देखोगे कि एक स्टेट आएगा, यहां से एक स्टेट आएगा इस सिस्टम में, जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस चीज को मोर अप्रोप्रिएटली समझाने के लिए मान लो मैं कहूंगा इनिशियली सरफेस में से 100 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में जा रहे थे, लेकिन उस टाइम क्या थे, उस टाइम जो कंडेंसेशन हो रही थी वो खाली 10 मॉलिक्यूल्स की हो रही थी। अब धीरे धीरे जब वेपराइजेशन हो रहा है
100 मॉलिक्यूल्स में से अब 200 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और मान लो यहां से अब 20 बढ़ रहा है, यहां से फिर से वेपोराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। वेपोराइजेशन वेपर फॉर्म जब इंक्रीज हो रहा है अपर पार्ट में, तो कंडेंसेशन प्रोसेस भी वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे जो टाइम के साथ आप इस प्रोसेस को देखोगे, एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन नाउ विल बी इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। व्हाट आई वांट टू से इज दैट, मान लो एक ऐसा स्टेट है जहां पे यहां पे वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है, मान लो 1000 वेपर मॉलिक्यूल्स है ऊपर, मान लो। अब हो क्या रहा है, मान लो यहां से, अब देखो 1000 वेपर जो है वो अपर सरफेस पे है, अपर पार्ट में है यहां पे, लेकिन अब क्या है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। लेकिन वेपोराइजेशन कैसे हो रहा है, मान लो जब यहां पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स 1000 है, मान लो, अब क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन से मान लो अब 100 वेपर जो है वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं, तो बताओ यहां पे क्या होगी कंसेंट्रेशन अब 1100। लेकिन उसी टाइम बराबर 100 मॉलिक्यूल जो है वो वापस जा रहे हैं किसमें, वो लिक्विड सरफेस में जा रहे हैं। तो बताइए मुझे क्या इस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यानी कि एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो उस टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ वेपर है अपर पार्ट में वो 1000 है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी वेपराइजेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन हो रही है। यानी कि अगर 1000 में से अब 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो कंसंट्रेशन यहां पे होनी चाहिए थी 1100 वेपर्स, लेकिन उन्हीं 100 वेपर्स का वापस कंडेंसेशन हो रहा है और वो वापस जा रहे हैं लिक्विड सरफेस में। क्या इस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी कि ये यहां पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम कहेंगे इस स्टेट पे जितनी रेट ऑफ वेपोराइजेशन हो रही है उतनी ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रही है। व्हेन रेट ऑफ one process is equal to the rate of its opposite process, we say that there is an equilibrium, and we show that equilibrium by this reversible two-headed arrows, and we say यहाँ पे equilibrium आया। यानी कि concentration of vapor my dear students change नहीं होगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब जितनी भी concentration of vapors my dear students होगी, अब ये change नहीं होगी as long as the temperature remains constant। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ज्यादा वेपर्स और बनने लगेंगे, फिर से टाइम पास हो जाएगा, फिर से नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इसीलिए मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। उस टाइम जो वेपर्स की कंसंट्रेशन होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम जो वेपर्स की कंसंट्रेशन होगी, मैं लिखूंगा यहाँ पे वेपर्स की कंसंट्रेशन होगी, हम उसको कहेंगे इट विल बी मैक्सिमम, दैट इज 1000। अब उस वेपर की वजह से, और हम उसको कहते हैं कि यहां पे वेपर्स किस लेवल पे पहुंच गए, सैचुरेशन लेवल पे माय डियर स्टूडेंट्स पहुंच गए। यानी कि वेपर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, अब और ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट दिस प्रेशर। अब उन वेपर्स की वजह से क्या होगा, वो वेपर्स यहां से पास होके देखिए यहां पे, और वो वेपर्स इस मर्करी कॉलम पे अपना वेट पुट ऑन करेंगे, यानी कि वो अपना प्रेशर पुट ऑन करेंगे। और जब इस लिम्ब में मरकरी अपना वेट पुट ऑन करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मरकरी मूव करने लगेगा, और इस लिम्ब में आप देखोगे मरकरी की लेवल जो है वो इस कॉलम में माय डियर स्टूडेंट्स वो बढ़ जाएगी। अब मानो कितनी बढ़ गई, मैं कहूंगा सर H यहां तक बढ़ गई। माय डियर स्टूडेंट, जितनी इस लिम्ब में मरकरी की लेवल बढ़ जाएगी, इसका मतलब है उतना ही ज्यादा यहां से प्रेशर है। और कितना प्रेशर यहां से होगा ज्यादा, वो डिपेंड करेगा कि यहां पे वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स कितनी है। जितनी वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही वो इस पे अपना वेट पुट ऑन करेंगे, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उतना ही मरकरी का जो लेवल है वो उस कॉलम में बढ़ जाएगा। यानी कि ये किस प्रेजेंस में हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में हो रहा है। तो यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में हो रहा है, एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो हम इस स्टेट को कहेंगे, अब देखो यहां पे अब कितना प्रेशर होगा वो हम यहां से मेजर करेंगे, और प्रेशर की फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब यहां पे बताओ रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड और वेपर जो यहां पे है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माय डियर स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि मेन जो है वो एच पे ही डिपेंड कर रहा है, जितना एच ज्यादा होगा यानी कि उतना प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, ये एट अ टाइम इंक्रीज नहीं हुआ था, मैंने तो आप पहले ही बना के रखा था, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वेपर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब
इक्विलिब्रियम आया, जब एक ऐसा स्टेट आया जहां पे रेट ऑफ वेपराइजेशन वाज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, हम उस टाइम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर अब चेंज नहीं होगी, यानी कि जितना भी वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है और वो कांस्टेंट होगा इस टेम्परेचर पे, और वो हमें इस हाइट से हमें पता चलता है। यानी कि अब आप देखोगे टाइम पास तो हो जाएगा, लेकिन इस मर्करी की लेवल इस कॉलम में अब माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो हम कहेंगे यहां पे फिर क्या रहा कांस्टेंट, यहां पे वेपर का प्रेशर कांस्टेंट रहा, किस पे, एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यह हुआ दैट यहां पे आपने सीखा दैट देयर कैन बी an equilibrium which can exist between the vapor and its liquid form, इसलिए हमने लिखा इसको liquid vapor equilibrium। एक important conclusion जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है my dear students that यहां पे मैंने liquid water लिया, इसलिए liquid जब water है तो वेपर भी वाटर का ही होगा जिसको आप वाटर वेपर कहते हो। और आपको पता है इस कंडीशन पे यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वहां पे वेपर जितने भी होंगे वो सैचुरेशन लेवल पे होंगे, और उस टाइम जो भी प्रेशर होगा दैट्स वाई देखो एक तो उस प्रेशर को, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उस प्रेशर को आप सिंपली वेपर प्रेशर भी कह सकते हो, मैं आपको अभी डेफिनेशन भी दूंगा, उसको आप सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हो, और माय डियर स्टूडेंट्स आप उसको इक्विलिब्रियम, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, आप उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहोगे, और सिंपली आप उसको वेपर प्रेशर कह सकते हो। आप वेपर प्रेशर कहो, इसका मतलब ये आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि वेपर प्रेशर खाली नहीं है। नाउ सी व्हाट इज द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is defined as the pressure exerted by its vapors on its surface. Try to understand what I am saying. The vapor pressure of a liquid, because liquid का ही pressure होगा उसके vapors की वजह से, उसको हम कहते हैं vapor pressure. My dear students, please try to understand what I am going to say. इस पॉइंट को पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड करो। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? यू कैन कॉल इट एज अ वेपर प्रेशर, यू कैन कॉल इट एज एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, यू कैन कॉल इट एज अ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। बिफोर कि मैं एक डेफिनेशन दे दूं, मैं आपको फिर से कहूंगा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इसलिए बिकॉज ये सिस्टम इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू है रेट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरी बात, यहां पे जो वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम होगी माय डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी 100% मैक्सिमम एट दिस टेम्परेचर, वी कॉल दैट एज अ सैचुरेटेड लिमिट, सैचुरेशन लिमिट। दैट्स व्हाई हम उस वेपर प्रेशर को सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, वेदर यू कॉल्ड वेपर प्रेशर, whether you want to define the equilibrium vapor pressure or you call it saturated vapor pressure, all will have the same meaning my dear students. Now look at the definition. What I'm going to say is that यहां पे कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रह रहा है, यहां पे जो कांस्टेंट पैरामीटर रह रहा है वो है वेपर का प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स सम कंडीशंस आर ऑलरेडी कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ सी द डेफिनेशन. What is vapor pressure? The vapor pressure of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface. Again, I am trying to define it. The pressure exerted by the vapors of the liquid on its surface in equilibrium with it. Try to understand what I am saying. The vapor pressure of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface in equilibrium with it. We call that vapor pressure as saturated vapor pressure, my dear students, or we call that vapor pressure as equilibrium vapor pressure. But you have to keep this thing in mind that, sir, how come over here the equilibrium has attained? Because here the two opposing processes, that is rate of vaporization, and in case of water you can call it as the rate of evaporation as well. Rate of vaporization is exactly equal to the rate of condensation, and that is why we said that the equilibrium has attained. And since the equilibrium has attained between the liquid and its vapor, we call such an equilibrium as liquid vapor equilibrium, my dear students. बट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपने कांस्टेंट रखा ही है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, एंड उसका वैल्यू होता है 1.03 बार्स. बार इज आल्सो अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज द सीजीएस यूनिट. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी क्यों कहते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी क्यों कहते हैं, या इसको वेपर प्रेशर भी क्यों कहते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं. देखिए मैं यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे भी ऐसे दिखाया, अगर लिक्विड मैंने क्या लिया माय डियर स्टूडेंट्स,
लिक्विड अगर मैंने वाटर लिया तो मैंने H2O लिखा, लिक्विड लिखा ब्रैकेट में, सिंस इक्विलिब्रियम है तो मैंने दो एरोज दिखाए, रिवर्सिबल प्रोसेस और वाटर, यानी कि वो लिक्विड वेपर में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो बताओ कौन सा पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है? द पैरामीटर व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इज द vapor pressure, which we call as a saturated vapor pressure, that remains constant. Now see the important conclusion that I'm going to tell you. It's a very very important thing. वो क्या है? मान लो अगर आपने चलो लिक्विड ही लिए यहां पे, उसमें कोई शक नहीं है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मैं यहां पे लिखूंगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, my dear students, that is standardized and let's suppose that is equal to 1 atm. atm is the unit of atmospheric pressure, उसका वैल्यू वो होता है। और मान लो स्टूडेंट्स, my dear students, आपने टेम्परेचर जो रखा, आपने टेम्परेचर यानी कि आप जो हीट कर रहे हो सिस्टम को, आपने टेम्परेचर रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो रिटन एज 373 केल्विन। देखिए अब आपको पता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बॉइलिंग पॉइंट है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, दैट इज वाटर। H2O मैं लिखूंगा ब्रैकेट में लिक्विड। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपने बाहर का प्रेशर कितना रखा, जो भाई ऑलरेडी पता है आपको, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन। आप क्या करोगे काम? देखिए आप क्या करोगे काम, आप इसको हीट करते जाओगे, आप इसको हीट करते जाओगे। देखो वो प्रेशर तो पता ही है आपको, वेपराइजेशन भी होगा, डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन भी होगा, लेकिन आपने यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा था? आपने यहाँ पे टेम्परेचर रखा था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो बाहर से एटमॉस्फेयर है माय डियर स्टूडेंट्स, और अंदर से वेपर्स है। वेपर भी गैसियस फॉर्म होता है। एटमॉस्फेयर की वजह से भी प्रेशर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वेपर की वजह से भी प्रेशर होता है। वो टेम्परेचर, एक इंपॉर्टेंट बात समझो, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज करेगा। देखिए ऊपर से क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूं, इस कंटेनर में मान लो लिक्विड है, चलो मान लो लिक्विड, मैंने यहाँ पे वाटर लिया तो इसमें वाटर है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बाहर से क्या है, बाहर से एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की वजह से भी क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से भी क्या है, प्रेशर, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो P है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर मैंने लिया एंड दैट इज इक्वल टू 1.03 बार मैंने लिया। तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तो नॉर्मली बाहर से प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। अब आप क्या कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको हीट कर रहे हो। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो धीरे धीरे अब इस लिक्विड की वजह से वेपर्स बनने लगते हैं। कंडेंसेशन भी, कंडेंसेशन प्रोसेस तब होगा यहाँ पे जब आप यहाँ पे कंटेनर को क्लोज रखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स कंटेनर को क्लोज ओपन किया ना, वेपर भाग जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं फॉर गैसियस सब्सटेंसेस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ओनली एंड ओनली व्हेन द कंटेनर्स आर क्लोज। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, जब इक्विलिब्रियम आया, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। पैरामीटर जो कांस्टेंट रहा, दैट पैरामीटर इज द वेपर प्रेशर, वो कांस्टेंट रहा। लेकिन क्या प्रोसेस रुका हुआ है? नहीं। Certain parameters are constant, my dear student, but the processes, two opposing processes are going on. यानी कि सिस्टम रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है। That's why हम कहते हैं equilibrium is dynamic in nature. यानी कि there are certain parameters which apparently remain constant. They don't show any change in its value, but the two opposing processes are continuously going on, and we call such a state as equilibrium, and we say that the equilibrium is dynamic in nature. Dynamic means that is changing in nature. चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आपने हीट किया, हीट की वजह से क्या होगा, वेपर्स बनने लगेंगे। बाहर से क्या है, बाहर से एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है, वी कॉल दैट एज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आप ज्यादा हीट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो ज्यादा वेपर्स बनने लगेंगे, उन वेपर्स की वजह से ज्यादा एक्सर्ट होगा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। दबा कहते हैं, या कैसे भी अगर इसका बात करो, दबन सु टेम्परेचर, चलो मैं उर्दू में ही बताऊंगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मे बी देख रहे होंगे जिनको कश्मीरी नहीं आती, तो इसलिए मैं उर्दू में बात करूंगा। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड के वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा, इक्वलाइज होगा,
we call that temperature as a boiling point of liquid. So my dear students, that temperature in case of water is equal to 100 degree centigrade. इसका मतलब ये हुआ that 100 degree centigrade is that temperature at which the vapor pressure of the water becomes equal to the atmospheric pressure, and that is equal to this. So you have the new definition of boiling point. Boiling point is defined as that temperature at which the vapor pressure of a liquid, when it becomes equal to the atmospheric pressure, we call such a temperature as the boiling point. उसको boiling point कहते हैं. तो आज के बाद my dear students, you won't say boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the liquid starts boiling. No, ये definition ठीक है, डेफिनेशन सही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए. तो आज से आप कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी कॉल सच temperature as the boiling point, and in case of water that temperature is equal to 100 degree centigrade. But boiling point जो है it varies from liquid to liquid. Boiling point हर liquid का same नहीं होगा. Boiling point जो है it depends. चलिए ये कंडीशन तो मान लो आप सेम ही रखेंगे, बाहर का जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो आप यूजुअली एट अ प्लेस चेंज नहीं कर सकते हो, बट इट वेरीज फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड, मींस इट वेरीज फ्रॉम दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड. हर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, नेचर ऑफ लिक्विड. मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको यहाँ पे एक और देता हूँ इस चीज को क्लियर करने के लिए. At this atmospheric pressure, what is the boiling point of water? That is 100 degree centigrade. That you already know. That और in terms of Kelvin कितना है? Dear students, 373 Kelvin. लेकिन अगर आप देखोगे अल्कोहल की, अगर आप बात करोगे, अगर आप my dear students अल्कोहल की बात करोगे, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ. अगर आप अल्कोहल की बात करोगे, इसको आप इथेनॉल कहते हो, C2H5OH. इथेनॉल का इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है, यानी कि किस टेम्परेचर में अल्कोहल अपने वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो इक्वलाइज करेगा. एंड इन केस ऑफ C2H5OH, इसको मैं कहूंगा यहाँ पे यानी कि इथेनॉल, आप इसको नॉर्मली अल्कोहल भी कह सकते हो. तो इस इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू इट्स 78 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जाहिर सी बात है, अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. लेकिन एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब है बाकी कंडीशंस तो आपने चेंज नहीं की, खाली आपने लिक्विड चेंज किया. तो इसका मतलब है दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है, लिक्विड का नेचर क्या है. और इन टर्म लिक्विड का नेचर का मतलब है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between the molecules of a liquid. That's a very very important concept that I am telling you, that the things upon which the boiling point of a liquid depends, the boiling point of a liquid depends first upon the atmospheric pressure. चलो वो तो constant है. दूसरी बात, it depends upon the nature of the liquid. Nature of the liquid का क्या मतलब है कि nature of the liquid means, यहाँ पे मैं लिखता हूं nature of liquid. नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है स्ट्रेंथ, मैं ऐसे लिखूंगा आप शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर, मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या सीधे लिखेंगे IMFA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जिस लिक्विड में डियर स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है जहां पे फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होंगे वहां पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और वहां पे वो लिक्विड हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा. लेकिन जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहां पे कंपैरेटिवली कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी और वो लिक्विड पहले वाले लिक्विड के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ दैट नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of attraction. It means boiling point of a liquid is proportional to nature of liquid. That means nature of liquid का मतलब क्या है? मैं लिखूंगा strength of intermolecular force of attraction. और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में ये लिखूंगा greater the value of boiling point, greater the value of boiling point, greater will be the strength of intermolecular force of attraction. तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखता हूं ऐसे, that strength of intermolecular force of attraction जो है किस लिक्विड में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जहां पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस लिक्विड को बॉयल करने के लिए. तो
इसका मतलब ये हुआ जिस लिक्विड का डियर स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होगा और वो हायर टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज को आप याद रखिए, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो अब कॉमन सेंस है, क्या हर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सेम नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ लिक्विड। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था, हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वाटर लिया और वाटर और उसके वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम को हमने सीखने की कोशिश की। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में कौन सा पैरामीटर जो है जो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज़ हमने कहा इक्विलिब्रियम पे कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं और वो पैरामीटर जो है वो वेपर प्रेशर है। और हमने वेपर प्रेशर को भी डिफाइन किया, इट इज दैट pressure of the vapors of a liquid on its surface and in equilibrium with it. We call such a pressure as simply a vapor pressure, or we can call that as an equilibrium vapor pressure, or we can also call that as a saturated vapor pressure. And when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, and at what temperature it will occur, that temperature is called the boiling point of liquid. So this was the second example of phase transformation process in which we discussed the equilibria, that means the physical equilibria. Now we are going to give the second, in fact the third example by which we are going to discuss the physical equilibria, that is the equilibrium between solid and its vapor. मैं फिर से कहूंगा, पहला इक्विलिब्रियम जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा वो हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अभी हमने पढ़ा लिक्विड और वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम। मैंने एक्सटेंसिवली आपको ये चीजें सिखाई। और जो तीसरा आ रहा है वो हम पढ़ेंगे सॉलिड और उसके वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम आएगा, वी विल कॉल दैट एज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो वी विल कंटिन्यू इट। So my dear students, before we are going to discuss the third example of the phase transformation process in which we are basically discussing the physical equilibrium, that is the solid vapor equilibrium, जो हमारा जो है तीसरा जो इसमें टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ वो चीजें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताई। पहली बात, वेपर प्रेशर इंक्रीज। वेपर प्रेशर मैंने अभी आपको डिफाइन किया, मैं फिर से कहूंगा, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज दैट प्रेशर विच द वेपर्स ऑफ द लिक्विड exerts on its surface and in equilibrium with it. मैं अगेन इसको डिफाइन करूंगा। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड is defined as a pressure exerted by the vapors of the liquid on its surface but in equilibrium with it. We call that pressure as vapor pressure. तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट सुनिए, मैंने उसके केस में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। अगर आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे, वेपर्स की कंसंट्रेशन भी माय डियर स्टूडेंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट वेपर प्रेशर इंक्रीजेस with temperature. You increase the temperature, vapor pressure will increases, and that's why when you define the vapor pressure, उस टाइम हम temperature को my dear students constant रखते हैं. This is point number first, very important. The second is at same temperature. अगर आप temperature same रखते हो, vapor pressure depends upon the nature of the liquid. इसका मतलब है एक particular temperature पे हर एक liquid का vapor pressure my dear students same नहीं होगा। मान लो अगर आप टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो और आप डिफरेंट लिक्विड्स लेते हो, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, हर एक लिक्विड का 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, बिकॉज वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। दैट मींस दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will not be same between the molecules in all the liquids, therefore at the same temperature all the liquids will not have the same vapor pressure. That's what I mean by saying that at same temperature vapor pressure of liquids depends upon the nature of the liquid. Number third point, that is more the vapor pressure, that means more volatile will be the liquid and hence lesser will be its boiling point. This is a very important concept. आप इसको ऐसे समझो, मान लो
एक लिक्विड ऐसा है जो जल्दी जल्दी वेपर बनाता है, जो जल्दी जल्दी वेपर बनाता है। देखो वेपर की टेंडेंसी होती है माय डियर स्टूडेंट्स भागने की, और जो चीज जिस चीज की एस्केपिंग टेंडेंसी होती है हम उसको कहते हैं इसका वोलाटाइल नेचर है, देखिए ये वोलाटाइल है, इट हैज एन एस्केपिंग टेंडेंसी। अब जिस लिक्विड की वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका आप मतलब आप बताइए, आप उसको ज्यादा वोलाटाइल कहेंगे या कम वोलाटाइल कहेंगे? ग्रेटर द वेपर प्रेशर मींस जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो तभी पॉसिबल है जब उसको वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हम उस लिक्विड को मोर वोलाटाइल कहते हैं। और जो वेपर ज्यादा जल्दी बनाता है उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको वो कम ही टेम्परेचर पे जो है ज्यादा वेपर्स बनाता है, और वो तब पॉसिबल होता है जब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक हो। जहां पे भी आपको मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स वीक दिखे, इसका मतलब है उन मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल वो लिक्विड जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स उतना ही कम होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट more the vapor pressure of liquid, that means more is its volatile nature and hence lesser will be its boiling point. And boiling point मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। Boiling point is defined as that temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. And you know जो atmospheric pressure जो हम लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा P atmosphere, that is P atmospheric pressure जो हम लेते हैं, that is standard condition वो हम लेते हैं 1 atmosphere and that is equal to 1.03 bar. तो ये उसका वैल्यू है। इनफैक्ट अगर हम एक्चुअल देखेंगे, मैंने आपको 1.03 बार ही इससे पहले बताया था, एक्चुअल अगर आप देखोगे इट इज 1.013 बार। आई एम गोना करेक्ट इट हियर बाय माय सेल्फ। तो अगर मैं एक्चुअल इसका वैल्यू आपको बताऊं तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है वैल्यू, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.013 नॉट 1.03, एग्जैक्ट है इसका 1.013 बार। ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर है। तो जब वो टेम्परेचर लिक्विड का जहां पे उसका वेपर प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, द टेम्परेचर of the liquid at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, we call that we call that temperature as the boiling point or the normal boiling point, and in case of water that is equal to 100 degrees centigrade. And the last but not the least point is open vessels don't establish equilibrium. आप एक बात इमेजिन कीजिए, जो मैंने इससे पहले वो बॉक्स बनाया था, अगर मैं बॉक्स ओपन रखूं माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी वेपर्स बनेंगे since they have more escaping tendency, they have more kinetic energy, they will escape to the outside atmosphere. तो जब वो भागेंगे तो वो अपने लिक्विड सरफेस के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसीलिए my dear students, please try to understand this point. If you have an open vessel and if you have the gaseous substances, you can't establish equilibrium in that. So open vessels don't establish equilibrium. This was a recapitulation of previous example, that is second, that we have discussed, and now we are going to discuss the case number third, that means the equilibrium that can be set up between the solid and its vapor form. So in order to understand this, मैंने यहाँ पे लिखा solid vapor equilibrium। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सॉलिड और उसके वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम जब आएगा उसको हम कहेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है, सिंस इक्विलिब्रियम में मैंने आपको 1000 मर्तबा कहा है कि इक्विलिब्रियम जब हम डिस्कस करते हैं तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड और उसके वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो ऑफ कोर्स वो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए। अब जब वेपर है तो बात समझिए, जब वेपर है इसका मतलब ये गैस है, तो गैस के लिए आप कंटेनर क्या ओपन रखेंगे? बिल्कुल नहीं, यू हैव टू कीप द कंटेनर क्लोज्ड। और दैट्स व्हाई एग्जांपल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल ली है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो, आप रेफरेंस बुक भी देख सकते हो, वहां पे लिखा होगा आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में लिया हमने, और यही जब वेपर बनाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे लिक्विड इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आता है, तो सॉलिड और उसके वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वी विल कॉल दैट एज अ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एन आयोडीन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट आयोडीन जो है दिस आल्सो एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, और इसका कलर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो पर्पल है। तो उस प्रोसेस को जहां पे सॉलिड, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, वो प्रोसेस जहां पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है into its gaseous form, into its vapor form, we call that process as sublimation. Usually solid पहले liquid बनाता है, उसके बाद गैस बनाता है, लेकिन there are certain substances whose
particle force of attraction are so weak that by decreasing the pressure and somehow increasing the temperature, they directly get converted from the solid form to vapor form, and we call that process as sublimation. और उस प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट सब्लिमेशन कहते हैं. लेकिन सिंस इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वेपर की भी वापस टेंडेंसी होगी सॉलिड बनाने की. आप इस प्रोसेस को डीसब्लिमेशन भी कह सकते हो, आप इस प्रोसेस को डिपोजिशन भी कह सकते हो, यानी कि वेपर वापस सॉलिड पे डिपॉजिट हो रहा है. आप इस प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स डिपोजिशन भी कह सकते हो, डीसब्लिमेशन भी कह सकते हो आपको. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आयोडीन की लिया. तो आयोडीन सिंस ये वेपर बनाएगा, तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर, एक ट्यूब लिया है और इसको क्लोज करने के लिए मैंने यहां से कॉटन का प्लग कर दिया है. देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए. मैंने ये नीचे जो बॉटम पे आपको अगर दिखेगा, तो मैंने यहां पे एक ऐसा जो शेडेड पोर्शन बनाया स्क्वायर की फॉर्म में, ये मैंने रिप्रेजेंट किया. मान लो ये आयोडीन है इन द सॉलिड फॉर्म, तो मैंने इसका लिखा सॉलिड आयोडीन. और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कलर जो है वो पर्पल है. और ऊपर क्या है? ऊपर तो मैंने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन ऊपर एयर होगा और आपको पता है एयर इज कलरलेस. अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? मान एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, द आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो यहां पे है, सॉलिड से आप वेपर फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे. और वो वेपर्स भाग ना जाए, इसलिए हमने ऊपर से कॉटन का प्लग कर दिया है कि वेपर्स को भागने नहीं देंगे. कुछ देर के बाद देखो, पहले क्या है? पहले खाली सॉलिड आयोडीन नीचे है, ऊपर कुछ नहीं. आप ऊपर आपको कोई कलर नहीं दिखेगा. नाउ यू जस्ट नोट द टाइम, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप देखोगे कि इस ट्यूब में पर्पल कलर की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी. पहले थी नहीं, बिकॉज एयर जो है कलरलेस है, खाली जो पर्पल सॉलिड आयोडीन आपको नीचे दिखेगा. लेकिन जो ही टाइम गुजरेगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे होल ट्यूब में पर्पल कलर की इंटेंसिटी पहले बहुत डार्क थी, फिर ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी देर बढ़ने लगेगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब सॉलिड आयोडीन जो है वेपर की फॉर्म में चेंज होगा. और वही वेपर जब ऊपर वाले सेक्शन में आ गए, तो उनकी वजह से ऊपर वाले सेक्शन में भी कलर आ गया. दैट इज द वेपर्स ऑफ आयोडीन बनेंगे ऊपर, और वो भी पर्पल है. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप देखोगे कि लाइट कलर से डार्क कलर से जब पर्पल कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब कलर इंटेंसिटी फेड नहीं होगी, वो कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. इसका मतलब ये हुआ दैट अब यहां पे सिर्फ पर्पल कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ जितनी तेजी से आयोडीन सॉलिड में से वेपर फॉर्म में जा रहा है, उतनी ही रेट से वेपर फॉर्म में वो सॉलिड आयोडीन वापस बना रहा है. So there are two processes which are opposite to each other. One is the forward process. Let us suppose हम इसको forward करेंगे, and another is the my dear students backward process. तो यहाँ पे जो forward process और backward process होती है, first we call that as a reversible process. But second, at that stage, at that point, when the rate of forward process becomes equal to the rate of backward process, we call such a state as equilibrium state. तो हम कहेंगे इस process में equilibrium आ गया. माय डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन और उसके वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम आएगा. और ये आप कैसे जानोगे? सर, बिकॉज अब यहां पे इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर चेंज नहीं हो रही है, जितनी भी है वो कांस्टेंट रह रही है. अगर और ज्यादा, मान लो अगर और ज्यादा वेपर सॉलिड में वेपर में जाते, तो फिर कलर की इंटेंसिटी और ज्यादा एनहेंस हो जाती. या अगर मान लो वेपर में से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉलिड आयोडीन में डिपॉजिट होते, फिर कलर की इंटेंसिटी कम होती. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. कलर की इंटेंसिटी जो है, वेपर जो पर्पल कलर की इंटेंसिटी जो है, ये अब कांस्टेंट रह रही है. जब ये पर्पल कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम आ गया. लेकिन उस टाइम पे सिस्टम रुका हुआ नहीं है. सॉलिड आयोडीन से वेपर फॉर्म में भी चेंज हो रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से वेपर फॉर्म वापस सॉलिड आयोडीन में डिपॉजिट हो रहा है. एंड वी कॉल सच अ प्रोसेस एज इक्विलिब्रियम. वी कॉल सच अ स्टेट एट इक्विलिब्रियम. तो इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम, यहां पे इंटेंसिटी मैं यहां पे लिखूंगा इन अबो केस इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर जो है, इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर remains constant, and that is possible only when the amount of solid iodine getting changed into the vapor iodine is equal to the amount of vapor iodine getting back converted into the solid iodine, and that can be easily seen by this process. That means the intensity of purple color is not getting changed,
but the two processes, the opposite processes are obviously going on at an equal rate, and we called such a equilibrium is dynamic in nature. So we call the equilibrium is dynamic in nature. We call the equilibrium is डायनामिक इन नेचर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट अब हमेशा के लिए याद रखेंगे. जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, दैट इज नॉट स्टैटिक, दैट इज डायनामिक. दैट मींस इवन दो देयर आर सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स, इवन दो देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेबल चेंजेस, like in this case the color, purple color, they may remain constant, they don't show any change with the passage of time, but the two opposite processes are going, and they are going at an opposite rate. So that's why we call such an equilibrium as dynamic in nature. So equilibrium has a dynamic nature. So one more important thing is that ये तो मैंने आपको solid vapor equilibrium सिखाया by giving the example conversion of solid iodine into its vapor form. Are there some certain other examples by which in which the solid vapor equilibrium established? चलिए मैं ये erase करता हूं, ये चीजें हमने ऑलरेडी सीखी है. Yes, of course, there are certain more examples by which we can understand the concept of solid to vapor equilibrium, and that is you can check your book as well. एक और, चलो ये तो पहली एग्जांपल मैंने बताई. दूसरी एग्जांपल है, अगर आप लेंगे NH4Cl, NH4Cl, इसको आप कहते हैं अमोनियम क्लोराइड. मैं लूंगा सॉलिड फॉर्म में, और इसके और इसी के वेपर के दरमियान, दैट इज NH4Cl, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गैस. तो यहां पे भी आप देखोगे कि यहां पे भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. लेकिन एक चीज है, यहां पे इसमें कलर नहीं होता है. अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं. तो दिस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड गैसियस फॉर्म. वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप ले सकते हो, दैट इज कैम्फर. कैम्फर ये भी फ्रॉम सॉलिड तो इट्स वेपर फॉर्म जो है ये इक्विलिब्रियम दिखाता है. वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम. मैं गैस लिखता हूं यहां पे, तो उसको सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहते हैं. कैम्फर टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी समथिंग दैट सर वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज इट. कैम्फर जो है, इट इज बेसिकली अ वैक्सी सबस्टेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखिए, एक वैक्सी सबस्टेंस होता है, और ये नियर अबाउट व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है, नियर अबाउट व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट होता है. और ये जो है इसका एरोमा होता है, यानी कि फ्रेग्रेंस होती है इसको, जिसको आप एरोमेटिक कहते हो. मतलब एरोमा मींस स्मेल, हैविंग फ्रेग्रेंस. तो वैक्सी सबस्टेंस होता है, और ये बेसिकली किस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं, बिकॉज ये हायर केमिस्ट्री है. उसको कहते हैं टर्पेनॉइड. There are certain class of organic compounds which we call as terpenoids. तो terpenoids में से ही एक वैक्सी सबस्टेंस जो कि एरोमेटिक है, मतलब एरोमा है, फ्रेग्रेंस है, जिसको आप कैम्फर कहते हो. और इसकी जो फॉर्मूला है बेसिकली वो है C10H16O, if I'm not wrong. तो यही शायद इसकी फॉर्मूला है. तो you can check that out. So these are other substances which can show the solid vapor equilibrium. So this was the case number 3rd. Actually, we have discussed all the 3 cases of phase transformation processes wherein the equilibrium is established, my dear students. So actually, these are basically the physical processes involving equilibrium. So basically, they are physical reversible processes in which we understand the concept of equilibrium. We call that equilibrium as physical equilibrium. And for understanding the concept of equilibrium in reversible physical processes, we have discussed the 3 cases of phase transformation processes. That means one was from solid to liquid, जिसमें हमने मेल्टिंग की बात की, फ्रीजिंग पॉइंट की बात की. द सेकंड वाज लिक्विड टू वेपर, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखे. एंड द थर्ड वाज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम, जो हमने डिस्कस किया, माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसमें और 2 केसेस हैं जो कि सेपरेट है, जिसमें हालांकि रिवर्सिबल है और फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही वो पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. और वो है सॉलिड और सॉल्यूशन में, और दूसरा है गैस सॉल्यूशन में जब जाता है. तो वो 2 एग्जांपल्स और है, और वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो लेक्चर नंबर 4 में सिखाऊंगा. और उस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे सब टॉपिक्स के जो है वो रिवाइज करेंगे जल्दी, और मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के इस चीज को अंडरस्टैंड करवाऊंगा फिर से. एंड देन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड वी आर गोना मूव slowly ahead in our coming lectures, and we will inshallah try to complete this unit. You will stay with me, and I'll inshallah stay with you. And my dear
dear students, just one favor that I need from you is there. After watching these video lectures, I just want you to comment in the comment section जो नीचे होता है, आपके एक्सपीरियंसेस, अगर आप किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज वहां पे आप लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज वहां पे भी आप हमें मेंशन कीजिए, बिकॉज अगर आप हमें बूस्ट देंगे तो हम आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और लाइक करना, शेयर करना, प्लीज शेयर टू द नीडी स्टूडेंट्स जो इस टाइम बेचारे जो है कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको कहीं और से समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आप ये वीडियो लेक्चर्स फॉलो कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इंशाल्लाह वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।